Good morning, students. In the last lecture, we are discussing the importance of macroeconomics. Okay, macroeconomics का importance हम लोग देख रहे थे. First point is clear, that is functioning of economy. When we are thinking about the macroeconomics, we gives the idea it's doing all kind of work which is related to the economic system. Okay, and we are also watching that all the aggregate variables like total income, total investment, total consumption, aggregate demand, aggregate supply, these all kind of complex factors and these all kind of large factors are study part of study to the macroeconomics, right? So it is the first features of macroeconomics. मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे एग्रीगेट वेरिएबल जो होते हैं, जैसे टोटल इनकम है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल डिमांड है, टोटल सप्लाई है, नेशनल इनकम है, इन सब की स्टडीज़ होती है. ओके, तो ये बहुत ही लार्ज कंसेप्ट है और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है जिसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है. दूसरा इंपॉर्टेंस हमने देखा था इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. हमने ये भी देखा है कि इकोनॉमी में तीन टाइप्स के फ्लक्चुएशंस होते हैं, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट. कभी इनकम कम ज़्यादा हो सकता है, कभी आउटपुट कम ज़्यादा हो सकती है, कभी एम्प्लॉयमेंट कम ज़्यादा हो सकती है. तो इनको कंट्रोल करने के तरीके या इनको कम करने के तरीके मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में बताए. ओके, व्हेन वी आर स्टडी अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर फाइंड आउट द solutions to how to control income, output and employment fluctuations. Okay, third one, national income. So when you are study the macroeconomics book from chapter number 6 to chapter number 10, you got the information about the national income. Okay, and how it transferred to the common citizens. Okay, that is social account. We are watching the types of national income, that is GDP, GNP, NNP, then personal income. Okay, that's all are part of national income. And also we are watching the social account. Social account means how the public finance is increasing in our country, how the public income, public expenditure is distributed to all over the society. That we are watching in the last lecture. Okay, so without national income it is not decided that how to formulate the economic policy, right now. If you want to formulate economic policy, we want to first study about the national income, right. Next, fourth point we are also watching, that is economic development. Hmm? When we are study about the macroeconomics, we understood the problems of developing country. Okay, in our developing country there are lots of problems, just like poverty, just like overpopulation, just like employment, just like unemployment. So these all kind of problems are solving by economic development or 5 years plan, right. So to formulating 5 years plan, it is important to study about the macroeconomics. When we are study about the macroeconomics, we are find out the solutions, how to reduce the income, how to reduce the poverty, how to reduce the unemployment, how to increase the standard of living, and how to uh, income is distributed to all among the peoples. That is we are watching in the macroeconomics book. So therefore macroeconomics is very important. Okay, so now next part, that is fifth number point, performance of the economy. Macroeconomics help to analyze the performance of the economy. National income estimated are used to measure the performance of economy over time by comparing productions of goods and services in the one trade, that is the another trade. तो हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की, तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इनकम पे कॉन्सेंट्रेट किया. नेशनल इनकम कंट्री की परफॉर्मेंस दिखाता है कि कंट्री में इनकम कितना है, कंट्री ने डेबिट कितना लिया है, कंट्री का एक्सपेंडिचर कितना है. तो नेशनल इनकम कंट्री का इनकम, कंट्री का एक्सपेंडिचर और कंट्री का ओवरऑल डेबिट यानी कर्जा, इसके बारे में आपको बताता है. इसी के साथ नेशनल इकोनॉमिक इनकम काउंट करते वक्त हमें कंपैरिजन होती है कि लास्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना था गुड्स एंड सर्विसेज का, और इस ईयर का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना है. तो इनडायरेक्टली हम लोग पूरे इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, इकोनॉमी का परफॉर्मेंस देख रहे हैं. ओके,
क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में हम लोग नेशनल इनकम के बारे में सोचते हैं, तो नेशनल इनकम में कंट्री का इनकम और कंट्री का एक्सपेंडिचर दोनों की इंफॉर्मेशन दी है, जिससे हमें इतना तो कम से कम पता चलता है कि लास्ट ईयर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना था और इस ईयर का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना है, जिससे कंट्री को कम से कम कंट्री की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखने मिलती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखने के लिए नेशनल इनकम इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, जैसे हमने उसमें टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब की स्टडी की है। ओके, नेशनल इनकम चैप्टर देखा हमने, हमने पब्लिक फाइनेंस चैप्टर देखा, हमने आरबीआई, हमने सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इनकी इंफॉर्मेशन देखी। तो ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स है जिसकी स्टडी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में की। लास्ट पॉइंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग इकोनॉमी की और एम्प्लॉयमेंट की लेवल की स्टडी करते हैं, मतलब कंट्री की इकोनॉमी से कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है और कितने लोगों से उसको जॉब मिलता है। ओके, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की स्टडीज होती है या प्रोड्यूसन होता है और कितने लोगों को जॉब मिलता है। सो अभी डिफरेंस देखो, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, मतलब एक एक यूनिट की स्टडी करते हैं, यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर, मार्केट, ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स की हम लोग स्टडी करते हैं जिसको हम रियल लाइफ में इस्तेमाल भी नहीं करते। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट यूनिट की स्टडी करते हैं। एग्रीगेट यानी टोटल यूनिट की, यानी टोटल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, ओके, टोटल आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन। सो इनकी स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में करते हैं। व्हेन वी आर स्टडी अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर ओनली स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल फैक्टर्स जस्ट लाइक यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, देन यूटिलिटी, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, ओके, overall land, labor, capital, entrepreneurs, these factors of production we are studying in the microeconomics. But macroeconomics in the MACRO books we are study about the aggregate unit like total investment, total income, total demand, total supply, right? This kind of factors we are studying. So एक में आपको याद रखना है कि individual unit और एक में आपको याद रखना है aggregate unit. ओके, फर्स्ट डिफरेंस पता चला। एक में आपको याद रखना है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट और एक में आपको याद रखना है एग्रीगेट यूनिट। आप लोग नोटबुक में चाहिए तो लिख सकते हो। पहला पॉइंट, दोनों का पहला डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट, MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एग्रीगेट यूनिट, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट यूनिट। समझ में आया? पहले में इंडिविजुअल, दूसरे में एग्रीगेट। अभी दूसरा डिफरेंस है। तो इसका काउंट कैसे करेंगे? माइक्रो, MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल यूनिट एंड एग्रीगेट यूनिट। ओके, तो इंडिविजुअल यूनिट कौन से हैं? इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। इसमें एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा पॉइंट क्लियर, सिंगल डिमांड, सिंगल सप्लाई, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, ऑपोजिट। आया समझ में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट इंडिविजुअल चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट। तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अभी स्कोप क्या क्या है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कौन कौन सी स्टडी की? माइक्रो MICRO में हमने स्कोप यानी स्टडी की डिमांड, प्रोडक्शन, फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, इनकी स्टडी की। ओके, और हमने मैक्रो में किसकी स्टडी की? हमने MACRO में, तो नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। जो हमने पहले 5 चैप्टर में देखा वो MICRO का पार्ट है, फिर 6 से लेकर 10 चैप्टर जो हमने देखे दैट इज MACRO मैक्रो का पार्ट है, राइट? तो स्कोप में आपको फर्स्ट 5 चैप्टर्स में जो आपने सीखा वो लिखना है माइक्रो के,
और मैक्रो के स्कोप में आपको लिखना है 6 से लेकर 10 चैप्टर्स तक आपने जो सीखा, दैट इज नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी. ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस. मैक्रो इकोनॉमिक्स MICRO में हमने क्या देखा, प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, राइट. मॉडल बिल्डिंग देखा और बिजनेस डिसीजन, राइट. इंटरप्रेनर कैसे डिसीजन लेता है, इसके बारे में देखा. मैक्रो में हमने क्या देखा, मैक्रो में हमने देखा नेशनल इनकम की स्टडी, ओके, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस दो ही फैक्टर्स हमने देखे उसमें. अभी थेरी याद रखना है, MICRO मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी थेरी प्राइस थेरी है, और MACRO मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी थेरी इनकम थेरीज है. क्लियर. माइक्रो की सारी थेरी MICRO माइक्रो की सारी थेरीज प्राइस थेरीज है, और मैक्रो MACRO मैक्रो की सारी थेरी इनकम थेरीज है. अभी इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट. ओके, तो इंडिविजुअल ये वर्ड याद रखना है, और यहाँ पे टोटल इनकम या एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, बस इतना ही याद रखना है. एक में एग्रीगेट वर्ड है, एक में इंडिविजुअल वर्ड है. So you have to study about these factors and compulsory write down. Sorry, compulsory by head these questions. Okay, that is microeconomics and macroeconomics का difference. आपको पढ़ना है, ये आपको एग्जाम में आने वाला है, आपके नोटबुक में ये होना चाहिए. Clear? All the portions is now over. Now study each and every part of the chapters. From tomorrow onwards we are taking revisions. Okay, from next lecture. So our all portion is over. Assignments also over. Whatever the assignment we are given, you just complete it as soon as possible.